Hello everyone, welcome to economics class. We were discussing about the basic concepts of macroeconomics. In the previous videos, we have discussed about the classification of goods. Further, we discussed about the concept of investment and depreciation. Today, we will discuss a few more important concepts like stock and flow. Then, we will discuss about the circular flow of income, that is the real flow, money flow, and different phases of circular flow of income. This is very important topic. So try to understand the concepts properly. First, we will discuss about stocks and flows. What is stock? Stock refers to a quantity or a phenomena or a characteristic that is measured at a particular point of time. That is, it is measured at a point of time means now, present. It is a static concept and it is not a time dimensional concept. अभी मेरे पॉकेट में 500 रुपये हैं. This is a stock concept because the quantity is measured at a point of time. Now what's about the flow? Flow refers to a quantity or a phenomena or a characteristic that is measured over a specified period of time. It is not static, it is a dynamic concept. Further, it is time dimensional. एक महीने बाद मेरे बैंक अकाउंट में इतना अमाउंट होगा. दैट इज दिस इज द टाइम डायमेंशनल. एक महीने का टाइम है, सो इट विल बिकम अ फ्लो कॉन्सेप्ट. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द स्टॉक एंड फ्लो इज दैट stock is a static concept while flow is a dynamic concept, means at a point of time during a period of time. Now, move to the next topic. This is about the examples. Flows, income. Income is generated, means it will take time. So, it is a time dimensional, it is a flow concept. Now, deficits. Deficits means the excess of spending over income each year. Excess of spending over income. Income as well as spending, both are flow concept. That's why deficits are also come under the category of flow concepts. Then investment. Investment refers to a process of capital formation, a process of increase in capital stock. Because it is a process, that's why it is time dimensional, that's why it is a flow concept. Then surpluses. The excess of revenue over expenditure each year. Excess of revenue. Revenue itself is a flow concept. Expenditure itself is a flow concept. That's why surplus is also a flow concept. Then stocks. Stock means measured at a point of time. Wealth. आज की डेट में इस टाइम मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है. दिस इज अ wealth. This is a stock concept. Then debt. The sum of all past deficits less all past surpluses. Debt means जो पुराना मेरा खर्चा था और जो मेरा पुराना सरप्लस बचा है या मेरा डेफिसिट है, मीन्स इट इज़ मेजर्ड एट अ ड्यूरिंग पास. दैट्स वाई इट इज़ measured at a point of time, that is it is a stock concept. Then capital. Capital, all the investment goods owned. Capital is a sum of past net investment. यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ. Capital is that amount of money, that amount of income which is used for investment. सपोज करिए कि मेरे पास 2 लाख रुपए हैं. दिस इज़ कैपिटल. आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट इट. मुझे इसको इन्वेस्ट करना है. मेरे पास अब 2 लाख रुपए हैं. दिस इज़ अ कैपिटल कॉन्सेप्ट. दिस इज़ कैपिटल. दिस इज़ अ स्टॉक कॉन्सेप्ट. मुझे इसको इन्वेस्ट करना है. मशीनें खरीदनी है, गोडाउन खरीदना है, लैंड खरीदनी है. इट विल टेक टाइम बिकॉज स्पेंडिंग और द एक्सपेंडिचर टेक्स टाइम. दैट्स वाई capital is a stock concept while capital formation is a flow concept. So try to understand the basic difference between these two. Then this is the difference between stock and flow. We have already discussed about this. The very first basis is the definition, second time, third concept, and fourth is example. You can better understand because we have already discussed about these 4 concepts. Now this is the interdependence. Stocks and flows are interdependent, means there is a greater degree of interdependence between these two, that is mutual interdependence. जो एक पीरियड में फ्लो होता है वो नेक्स्ट पीरियड में स्टॉक बन जाता है और उससे नेक्स्ट पीरियड में वो फिर से फ्लो बन जाता है. जैसे मैं ये कहूँ
कि मैं every month I'm depositing ₹1000 in my account, in my bank account. I'm depositing 1000 rupees every month in my bank account. This is a flow concept क्योंकि मैं हर महीने जमा करा रही हूँ. This is a time dimensional. अब यहाँ से मैंने देखा आज की डेट में अभी मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं. This is a stock concept. मैं जितना ज़्यादा अमाउंट जमा कराऊंगी उतना मेरा स्टॉक मेरा बैंक अकाउंट में मनी एक्यूमुलेट होती जाएगी. मतलब स्टॉक जो है वो फ्लो पर डिपेंड कर रहा है. नेक्स्ट, मुझे अपने अकाउंट में से मुझे निकालने भी हैं पैसे, विड्रॉ भी कराने हैं. दिस विल अगेन बिकम अ फ्लो कंसेप्ट. जैसे फिर से एक ईजी एग्जांपल लेते हैं. एक पिक्चर है, एक घड़ा है, उसमें टैप से पानी भर रहा है. दिस इज़ अ फ्लो कंसेप्ट. पिक्चर में कितना पानी है, दिस इज़ अ स्टॉक कंसेप्ट. उसमें से पानी लीक हो रहा है, दिस इज़ अगेन अ फ्लो कंसेप्ट. सो फ्लो leads to stock and stock leads to flow. There is a greater degree of mutual interdependence between these two concepts. Move to the next topic. This is the sectors of Indian economy, or simply you can say sectors of an economy. In all the economies, there are basically 4 sectors. The very first is household sector. Dear students, household sector is assumed to be the owner of factors of production. There are 4 factors of production: land, labor, capital and entrepreneur. You have already discussed about these 4 factors in 11th standard. There are 4 factors of production: land, labor, capital and entrepreneur. The remuneration or the reward paid for the use of land is known as rent. The remuneration or the reward paid for the services of labor is known as wages, and interest is paid for the use of capital, and profit is the reward for entrepreneurship. So these are the 4 factors of production. Sorry. It is assumed that household sector is the owner of factors of production, but the main economic activity performed by household sector is consumption. On the other hand, producer sector does not own any factor of production, but the main economic activity performed by producer sector is production of goods and services. हाउस होल्ड सेक्टर के पास सारे के सारे फैक्टर सर्विसेज हैं, लेकिन वो प्रोडक्शन नहीं करता, वो सिर्फ कंजम्पशन करेगा. प्रोड्यूसर सेक्टर के पास कोई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, लेकिन उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? प्रोडक्शन. देन व्हाट्स अबाउट द गवर्नमेंट सेक्टर? गवर्नमेंट सेक्टर का काम है वेलफेयर. जो भी एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट सेक्टर परफॉर्म करेगा, उसका अल्टीमेट एम होगा वेलफेयर. Then the external sector, also known as the foreign sector, and the main economic activity is exports and imports. The next topic, this is related with circular flow of the economy. This is very, very important topic. There are 2 types of flows. One is the real flow and second is the money flow. Meaning of real flow. Flow of goods and services among different sectors of the economy is called real flow. इसमें किसी तरह का कोई मॉनेटरी फ्लो नहीं होता. सेक्टर्स हैं. वैसे तो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर हम मार्केट में जाते हैं, हम गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं तो हम उसके बदले में पैसे देते हैं. लेकिन जब हम जब हम रियल फ्लो के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इन टर्म्स ऑफ थिंग्स होगा, इन टर्म्स ऑफ गुड्स होगा, इन टर्म्स ऑफ फैक्टर सर्विसेज होगा. आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. ऑन द अदर हैंड, this is the meaning money flow. Flow of money among different sectors of the economy is called money flow. जहाँ पर मनी का एक्सचेंज होता है, मनी की ट्रांजेक्शन्स होती हैं, वो कहलाता है मनी फ्लो. लुक एट द नेक्स्ट स्लाइड. दिस इज अ real flow as well as money flow. Now it is clear in figure number 1 that is money flow. Dear students, household sector is the owner of factor services, that is land, labor, capital and entrepreneurship or enterprises. There is a real flow from household sector to producer sector or firms
इन टर्म्स ऑफ फैक्टर सर्विसेज, क्योंकि मेन एक्टिविटी प्रोड्यूसर सेक्टर की है प्रोडक्शन करना, इसलिए द प्रोड्यूसर सेक्टर विल either purchase the factor services or hire the factor services from household sector. Clear? There is a real flow from household sector to producer sector in terms of factor services. Correspondingly, producer sector will produce goods and services because the main economic activity of producer sector is production, and there will be a real flow फ्रॉम प्रोड्यूसर सेक्टर टू हाउस होल्ड सेक्टर इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ किसी भी तरह का कोई मॉनेटरी ट्रांसफॉर्मेशन या फ्लो नहीं हुआ, इसलिए हम इसको कहेंगे रियल फ्लो। नाउ इन सेकेंड फिगर, फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म, देखो बच्चे, फैक्टर सर्विसेज हुई हैं कहाँ से? हाउस होल्ड सेक्टर ने फर्म्स को फैक्टर सर्विसेज दी हैं और बदले में फर्म ने या प्रोड्यूसर सेक्टर ने हाउस होल्ड सेक्टर को क्या दिया? हाउस होल्ड सेक्टर को दिया फैक्टर पेमेंट्स। अभी हमने डिस्कस किया था द रेम्यूनरेशन पेड फॉर द यूज़ ऑफ लैंड इज़ रेंट। सो प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को मनी फ्लो में क्या देगा? मनी फ्लो में देगा उसको रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर। यहाँ पर ये वाला जो है फैक्टर सर्विसेज नहीं आएगा, यहाँ पर ये रॉन्ग है आपका। देखो बेटे, फैक्टर सर्विसेज गई थी, बदले में आया था फैक्टर पेमेंट्स। सो मनी फ्लो में हम फैक्टर पेमेंट्स को इंक्लूड करेंगे, और हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोड्यूसर सेक्टर से गुड्स एंड सर्विसेज खरीदी थी, इसलिए वो इसको देगा एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर? गुड्स एंड सर्विसेज। अब आपका रियल फ्लो में क्या होगा? देयर इज़ अ रियल फ्लो फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर टू प्रोड्यूसर सेक्टर इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। देयर इज़ अ मनी फ्लो फ्रॉम प्रोड्यूसर सेक्टर और फर्म्स टू हाउस होल्ड सेक्टर इन टर्म्स ऑफ फैक्टर पेमेंट्स। ध्यान रखना, रियल फ्लो में मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स नहीं होती और मनी फ्लो में मॉनेटरी ही होती हैं, रियल को हम शो नहीं करेंगे। Move to the next. This is about money flows are opposite to real flows. Money flows are opposite to real flows. बड़ी सिंपल सी बात है, अगर हम गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहे हैं बीइंग हाउस होल्ड फ्रॉम प्रोड्यूसर सेक्टर, वी विल पे एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। अगर प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर से फैक्टर सर्विसेज ले रहा है तो बदले में वो क्या देगा? फैक्टर पेमेंट। सो व्हाट वी कंक्लूड दैट देयर इज ऑलवेज एन अपोजिट एंड इक्वल मनी फ्लोज corresponding टू रियल फ्लोज। और इस टॉपिक को एक्सप्लेन करते हुए आप ये वाला डायग्राम भी बनाओगे। अपने डायग्राम को ध्यान से देखो, यहाँ पर आपके पास आ रहा है पहला, देयर इज फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम बिजनेस सेक्टर to household sector. There is a real flow in terms of land, labor and capital. Correspondingly, there is a money flow in terms of factor payments. सबसे पहले क्या हुआ? एक रियल फ्लो था हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोड्यूसर सेक्टर में इन टर्म्स ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइजेज, और उसके करस्पॉन्डिंग रियल फ्लो हुआ फैक्टर पेमेंट्स का। फिर एक और रियल फ्लो हुआ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर सेक्टर टू हाउस होल्ड। इसके करस्पॉन्डिंग एक मनी फ्लो हुआ, दैट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ऑल्सो नोन एज एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो जब आपको दोनों को दिखाना है, मतलब आपका क्वेश्चन जो था, आपका क्वेश्चन था देयर इज इक्वल एंड अपोजिट मनी फ्लो करस्पॉन्डिंग टू एवरी रियल फ्लो, तब आपको ये एक्सप्लेन भी करना है और ये वाला डायग्राम भी साथ में बनाना है। विद दिस टॉपिक इज ओवर। मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? द सर्कुलर फ्लो मीन्स द अनएंडिंग फ्लोज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन एन इकोनॉमी। इन फैक्ट देर आर 3 phases ऑफ सर्कुलर फ्लो: प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन एंड डिस्पोजिशन। किसी भी इकोनॉमी में सबसे पहले प्रोडक्शन होता है और कुछ भी प्रोड्यूस होता है,
उस प्रोडक्शन से इनकम जनरेट होती है और उस इनकम को खर्च कर दिया जाता है, डिस्पोजिशन, और फिर से दोबारा प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। ये एक अनएंडिंग प्रोसेस है और ये तीनों फेजेस जो हैं वो एक दूसरे को चेज़ करते रहते हैं। मीन्स द फेजेस ऑफ प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कीप चेजिंग ईच अदर, इसलिए इसको हम एक अनएंडिंग प्रोसेस कहते हैं, इसीलिए इसको सर्कुलर फ्लो कहते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है। सर्कल में आप देखते हो कि जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वही कंप्लीट होकर एंड पॉइंट बनता है और दोबारा शुरू हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही एक इकॉनमी में 3 फेजेस होते हैं, प्रोडक्शन, इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन को हम एक्सपेंडिचर कहते हैं। ये तीनों एक दूसरे के पीछे घूमते रहते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं द फ्लो ऑफ इनकम इज सर्कुलर इन नेचर। This is 3 phases of circular flow. First is the production phase, also known as generation of income. Second, income phase, also known as distribution of income. Third is expenditure phase. सबसे पहले प्रोडक्शन फेज़ है। इकॉनमी में प्रोडक्शन होता है, उसी की मार्केट वैल्यू को हम इनकम कहते हैं। जब, क्योंकि आपको पता है प्रोडक्शन फैक्टर सर्विसेज की वजह से हो रहा है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर्स की वजह से। अब इनको उनका शेयर बांटा जाता है। दिस स्टेज इज नोन एज द इनकम फेज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. Distribution of income refers to a process of distributing generated income among different factors of production according to their share in terms of rent, wages, interest and profit. अब लोगों के पास पैसे आ गए, अब वो क्या करेंगे? एक्सपेंडिचर करेंगे, कंजम्पशन पर्पज़ के लिए भी, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए भी। मीन्स दिस इज़ अ स्टेज ऑफ एक्सपेंडिचर, ऑल्सो नोन एज डिस्पोजिशन. सो डिस्पोजिशन, लोगों ने सामान खरीदा, नेक्स्ट पीरियड में दोबारा से प्रोडक्शन शुरू हो गया. सो व्हाट आर द 3 फेजेस? फर्स्ट इज़ द प्रोडक्शन, सेकेंड इज़ द इनकम एंड थर्ड इज़ द एक्सपेंडिचर फेज. बच्चे, 4th चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे हाउ नेशनल इनकम इज़ कैलकुलेटेड. फॉर दिस वी हैव 3 मैथड्स. वन इज़ द प्रोडक्ट और आउटपुट मैथड, ये हमारा पहली स्टेज से निकलेगा. सेकेंड इज़ द इनकम मैथड, ये हमारा सेकेंड फेज से निकलेगा. एंड थर्ड इज़ द एक्सपेंडिचर मैथड, ये हमारा थर्ड फेज से निकलेगा. सो नेशनल इनकम कैन बी कैलकुलेटेड बाय 3 methods. One is the product or output method, second is the income method, and third is the expenditure method. Now, this is about circular flow of income. What does it mean? And the 3 phases. We have already discussed about these 3. You can understand it very easily. Then the next one. This is production phase, that is generation of income. Income phase, distribution of income. Expenditure phase, disposition of income. Income is first generated in production units, then distributed to households, and finally spent on goods and services produced by these units to make the circular flow complete its course. Means, why the generation of income or why the flow of income is circular in nature. इसमें आपको पॉइंट्स बताने हैं कि पहला पॉइंट ये कि इट्स स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट इज सेम. फर्दर, the 3 phases, that is the phase of production, income and disposition, keep chasing each other. These activities are unending in nature and remains continuous in the in the course of the economic activities. That's why this is circular in nature. Now, assumption of 2 sector model. बच्चे, actually there are 4 sectors in the economy और उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी होती हैं, तो 4 सेक्टर मॉडल भी होता है, 3 सेक्टर मॉडल भी होता है, लेकिन आपके सिलेबस में 2 सेक्टर मॉडल है, तो हम 2 सेक्टर मॉडल को ही स्टडी करेंगे. 2 सेक्टर मॉडल में कुछ अजम्पशंस हमें रखनी है. वेरी फर्स्ट, देर आर ओनली 2 सेक्टर्स इन द इकोनॉमी, दैट इज़ हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर. मीन्स देर इज़ नो government sector, no external sector. So the household spend their entire income so that there are no savings. Household sector को जितनी भी फैक्टर पेमेंट्स मिलती हैं वो सारी की सारी गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने में यूज़ कर लेता है. मतलब किसी तरह की कोई सेविंग नहीं है इकॉनमी में. सेविंग इज़ अ लीकेज. इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द लीकेज. तो सेविंग इज़ अ लीकेज, ऐसा लीकेज है ही नहीं है. जितना उसको फैक्टर पेमेंट्स मिलती हैं उतना ही वो यूज़ अप कर लेता है. थर्ड, the domestic economy is a closed economy. Closed economy is an economy having no foreign trade. क्योंकि हम ये मानकर चल रहे हैं there is no external sector, तो इकॉनमी कैसी है? closed economy. Fourth, there is no government in the domestic economy, means only there are 2 sectors,
First is the household and second is the producer sector. Move to the next topic. This is important observation. ये important observation हम कहाँ से निकाल रहे हैं? अपने 3 phases में से निकाल रहे हैं. फर्स्ट फेज़ में आपके पास आया प्रोडक्शन. प्रोडक्शन के फेज़ को हम कहते हैं इनकम जनरेशन. इनकम किस टर्म्स में आ रही है? दैट इज़ wages, then rent, then interest and profit. This is equal to value addition by the firms. पहली स्टेज में आपके पास प्रोडक्शन था. प्रोडक्शन का मतलब ही वैल्यू एडिशन होता है. सेकेंड स्टेज आपकी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. वो किसके बराबर है? फैक्टर पेमेंट्स के बराबर. नेक्स्ट हमने देखा टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय फर्म्स इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. अभी हमने पढ़ा कि किसी तरह का कुछ सेविंग नहीं है. जितना प्रोडक्शन में इनकम जनरेट होगी उतनी ही बांट दी जाएगी और उतना ही एक्सपेंडिचर होगा. फर्स्ट फेज़ में वैल्यू एडिशन होता है, सेकेंड फेज़ में फैक्टर पेमेंट्स आती हैं और थर्ड फेज़ में एक्सपेंडिचर आता है. सो ऑल दीज 3 आर इक्वल. सो व्हाट वी कंक्लूड दैट वैल्यू एडिशन in the first phase is equal to income generated in the second phase is equal to expenditure on goods and services in the third phase. So there is a triple identity. Triple identity कौन सी होती है? यही है triple identity. That is value addition is equal to income generated is equal to expenditure on goods and services. और ये एक बहुत important assumption पर based है. What is the assumption? अभी अभी हमने डिस्कस किया था. द assumption थी आपकी ये वाली. The household spend their entire income so that there are no savings. Means ये जो identity आपकी based है वो किस पर है? There is no saving in the economy at all. Next, this is the last topic, significance of the circular flow. यहाँ पर बहुत थोड़ा सा significance आ रहा है. अदरवाइज़ हम इसको बहुत डिटेल में और भी पॉइंट्स ले सकते हैं. कुछ पॉइंट्स मैं अभी बताऊँगी भी आपको, लेकिन जब हम चैप्टर नंबर 3 करेंगे तो भी और सिग्निफिकेंस भी हमें मिलेंगी. द वेरी फर्स्ट, दिस इज़ द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम. अभी अभी हमने डिस्कस किया 3 फेजेस होते हैं, तो तीनों फेजेस में से हम अलग अलग डेफिनेशन नेशनल इनकम की निकालते हैं. जैसे फर्स्ट फेज़ में से हम निकालते हैं नेशनल इनकम इज इक्वल टू रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट. दिस इज इक्वल टू फैक्टर पेमेंट्स. सेकेंड फेज़ में हम निकालते हैं दिस इज़ द वैल्यू एडिशन. वैल्यू एडिशन मीन्स market value of all the final goods and services produced domestically during an accounting year. Third, हमने डिस्कस किया एक्सपेंडिचर के बारे में. सो सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द प्रोड्यूसर सेक्टर. इन तीनों डेफिनेशंस को हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में दोबारा से उठाएंगे क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी. सो फिर भी हम ये कह रहे हैं कि ये जो पूरा टॉपिक हमने सर्कुलर फ्लो पढ़ा, क्योंकि इसमें हमने 3 फेजेस को स्टडी किया, तो तीनों फेजेस के करस्पॉन्डिंग हम 3 डेफिनेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं. देन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम प्रोवाइड्स अस द नॉलेज अबाउट द इंटरसेक्टोरल डिपेंडेंस. हाउसहोल्ड सेक्टर डिपेंड्स ऑन प्रोड्यूसर सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर डिपेंड्स ऑन हाउसहोल्ड सेक्टर. मीन्स देयर इज अ ग्रेटर डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस between the different sectors of an economy. और circular flow model हमें उस dependence के बारे में भी बताएगा. So what is the conclusion? That circular flow of income is also called circular flow of money. So dear students, with this chapter is over. What's your homework? You are to revise this chapter thoroughly. Revise complete chapter thoroughly. On Thursday there will be a written test of chapter number 1 and 2. So be prepared for test. If you have any doubt, you can send me your doubts either on app or in group or to me personally. Okay beta, goodbye. Stay home, stay safe, do your work properly. Goodbye.